morning, dear students. In our previous lecture, we had discussed about the Civil War. And Civil War, we were discussing socialism in Europe and the Russian Revolution. And the Civil War broke out between the Bolshevik Party and the provisional government. And ultimately, the Bolshevik Party, the power came into the hands of the Bolshevik Party. And next, we discussed about the making of a socialist society. Once the Bolshevik Party came into power, they started transforming, changing the society into a socialist society, because making a socialist society, it was the agenda, it was the motive of the Bolshevik Party. Their main motive, main objective was to improve the working condition of the workers. That is why they introduced various methods. They introduced various plans also to improve the condition of the workers. First, they introduced the 5-year plan, and the first 2 5-year plans, it was very successful. Huge increase in growth in the industrial sector. And not only that, and what they did, they established an extended schooling system also, and the arrangements were made for the factory workers and peasants to enter universities. Means the workers, those who wanted to do higher studies but they couldn't, for them the Socialist Party, they made the facility so that the workers and peasants could enter the universities. And not only that, creches were also established in factories for the children of women workers, and the cheap public health was also provided. So these were the measures taken by the Bolshevik Party to make a society, to make a socialist society. Now let us see the next topic. Let us discuss the next topic, that is Stalinism and collectivization. What is the meaning of Stalinism and collectivization? Here is a picture of Stalin. Stalin became the head or the leader of Bolshevik Party after the death of Lenin. Lenin की death के बाद Stalin became the head of the Bolshevik Party. So the ideology, the philosophy of Stalin, it was known as Stalinism, and the method he introduced or implemented, it was known as collectivization. So let us see what is the meaning of Stalinism and collectivization. By 1927-28 में क्या हुआ था? Russia was facing a huge problem of food supply. Food grains में बहुत ज़्यादा shortage हुआ था रशिया में. That is why that time the Russian government, what the Russian government did, the Russian government fixed the prices of food grains so that the common people did not face the problem, and they could solve the problem of acute shortage of food supplies by fixing the prices of food grains. But the peasants, the farmers, जो farmers food grains बेचते थे, they refused. They were not happy. They were reluctant. They refused to sell food grains to the government to the price fixed by the government. अब स्टालिन ने ये प्राइस फिक्स क्यों किया था? Why the government fixed the prices of food grains? Because Stalin believed that the rich farmers जो थे, peasants जो थे, traders जो थे, they hoarded goods. Means वो लोग goods को स्टॉक करते हैं, स्टोर करते हैं. Although they were having huge amount of quantity of food grains, still वो market में food grains को बेचते नहीं थे, because they wanted to create a false, fake shortage in the market. Once the shortage in the market was established, the rich farmers, the traders, they could sell their food grains at a very high price, and by doing this, they could earn a good profit. It was the belief of Stalin. Stalin ये मानते थे, जानबूझ के traders and peasants होल्ड करके एक pseudo, एक fake shortage create करते हैं मार्केट में,
ताकि वो हाई प्राइस में फूड ग्रेन्स को बेच पाए, एंड बाय डूइंग दैट दे कुड अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. दैट इज व्हाई व्हाट ही डिड, तो उन्होंने 1928 में पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे, सभी मेंबर्स क्या करते थे, रिच फार्मर्स के फार्म हाउस में, देन गोडाउन्स में सुपरवाइज करते थे एंड जबरदस्ती फूड कलेक्शन करते थे, गोडाउन में से रेड करते थे रिच फार्मर्स के गोडाउन्स में, एंड दे यूज्ड टू कॉन्फिस्केट फूड ग्रेन्स फ्रॉम द रिच फार्मर्स. लेकिन ये मेजर लेने के बावजूद भी, in spite of taking that measure, confiscation of supervising and enforced grains collection, ये जो शॉर्टेज का सिचुएशन था इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था. द सिचुएशन वॉज कंटिन्यूड. इसलिए स्टालिन ने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस अनदर मेथड. दैट टाइम ही थॉट ये जो शॉर्टेज है इसको रोकने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज करना जरूरी है, टू इंक्रीज और टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. And how to improve the agricultural production? How to improve the production of food grains? By introducing modern technology. And उनके हिसाब से modern technology small holdings में success. Yes, it is also correct. The modern technology cannot be successful in a small holdings because it is not economically feasible. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मॉडर्न टूल्स को यूज करने के लिए लार्ज लैंड होल्डिंग्स की जरूरत है. उस टाइम 1917 में जो रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन लैंड्स वर कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम द लैंड रिच लैंड ओनर्स, चर्च, नोबिलिटी, क्लर्जी एंड लैंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पेजेंट्स और फार्मर्स. इसलिए क्या हुआ था, लैंड का जो साइज था वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, एंड ड्यू टू दैट स्मॉल लैंड होल्डिंग्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड और इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज इट वाज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल. और जब वो रिच फार्मर्स से फूड ग्रेन्स छीन के भी सिचुएशन का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तब स्टालिन को लगा कि कलेक्टिवाइजेशन वाज द नीड ऑफ द आवर. अब कलेक्टिवाइजेशन की जरूरत है एंड इसी कलेक्टिवाइजेशन से ही एग्रीकल्चर सेक्टर का इम्प्रूवमेंट होगा. अब इम्प्रूवमेंट जब होगा तो ये जो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स है ये भी दूर हो जाएगा. लेकिन उस टाइम जो भी फार्मर्स कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट किया था, अपोज्ड किया था, दे वर सिवियरली पनिश्ड. And not only they were severely punished, they were deported or exiled also. Now let us see what was collectivization. Collectivization क्या था? I told you earlier also, 1917 के बाद farm small size में टुकड़ों में बट गया था. So it was not possible to implement or introduce modern technology on the small holdings. That is why स्टालिन ने क्या किया था, 1929 में द पार्टी फोर्स्ड द पेजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स. दैट वाज नोन एज कोलखोज. कोलखोज द नेम ऑफ कलेक्टिव फार्म्स. वो क्या करते थे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. से 50 फार्मर्स को इकट्ठा करते थे. 50 फार्मर्स में से किसी के पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, किसी के पास 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, किसी के पास 8 हेक्टेयर ऑफ लैंड है. ऐसे करके 50 फार्मर्स के पास जितने भी लैंड है उसको वो इकट्ठा करते थे. से 200 हेक्टेयर ऑफ लैंड को एक लार्ज फार्म होल्डिंग्स को इकट्ठा किया. अब वो 200 हेक्टेयर ऑफ लैंड में, एस्टेट में, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और वो जो 50 फार्मर्स से वो 200 हेक्टेयर ऑफ लैंड उन्होंने कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था, उसमें all those 50 families they would work and the products produced on that land, after selling that produce, the profit earned from that 200 hectare of land was divided among all the 50 families.
जितने भी 50 फैमिलीज उसमें वो काम करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा उस लैंड में से वो 50 फैमिलीज में डिवाइड हो जाएगा. So let us see what is written here. From this system, this method, it was known as collectivization. From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms, that was known as kolkhoz. Peasants worked on the land and implements were transferred to the ownership of collective farms. And peasants work on the land and kolkhoz profit was shared. Land में से जितना भी profit होता था वो उसी families में, जितने families उस land में काम करते थे, according to their work, profit was shared. अब ये स्टालिन ने सोचा था by doing collectivization he could improve the situation, he could improve the shortage of food grains, लेकिन ये हुआ नहीं था. In spite of collectivization, the production did not increase immediately. ऊपर से क्या हुआ था 1930-33 में due to bad harvest, devastating famine हुआ था सोवियत रशिया में. And in the history of Soviet Russia, because 4 million people died in that devastating famine. इस famine के बाद the Bolshevik leader Stalin was highly criticized by the party members. बहुत सारे members उनको criticize भी किया था, बहुत सारे members oppose भी किया था. So it was what about Stalinism and collectivization. Now let us see the next topic, that is global influence of Russian Revolution. कोई भी revolution जब होता है तब after that revolution within the country उसका तो impact influence होता ही है. global मतलब वर्ल्ड वाइड भी उसका एक इन्फ्लुएंस होता है. जैसे कि we had seen about the French Revolution. In the case of French Revolution also we had seen French Revolution के बाद the most of the countries of the Europe, they started thinking on the line of French Revolution. They started establishing liberty, equality, freedom in their countries. Similarly, Russian Revolution के बाद, as it was a big revolution on a big cause, so the whole world was highly influenced, inspired by the Russian Revolution. इसलिए क्या हुआ, रशियन रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ था. लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. क्यों? क्योंकि कंट्रीज, सभी कंट्रीज, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज, दे स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग देयर सोसाइटी इनटू अ सोशलिस्ट सोसाइटी. सोसाइटी को चेंज करने में लगे थे. एंड नॉट ओनली दैट, रशिया में जब बोल्शेविक पार्टी ने एक कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स ऑफ द ईस्ट, जिस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे नॉन रशियन जो रशिया के बाहर रहते थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. एंड नॉट ओनली दैट, रशिया में जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट है उसमें भी बहुत अलग अलग कंट्रीज में से लोग कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में मीन्स दे वांटेड टू स्टडी अबाउट कम्युनिज्म, इसलिए वो द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में आते थे. इन द मीन टाइम 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया था. जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब तक पूरे दुनिया में लगभग सोशलिज्म का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था. या द पीपल दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इट, वो उस लाइन पे सोचने लगे थे. अब 1950 में क्या हुआ, जब पूरी दुनिया सोचने लगे, अल्टीमेटली द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे केम टू रियलाइज कि जो रशियन मॉडल, सोशलिज्म का जो मॉडल रशिया में सक्सेसफुल है वो मॉडल हर कंट्री के लिए सेम नहीं है. सेम मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. ऑल्दो रशियन रेवोल्यूशन में रशिया में एग्रीकल्चर सेक्टर had developed a lot, the industrial sector had developed a lot, the poverty was highly reduced, बहुत ज़्यादा पुअर पीपल का नंबर भी कम हो गया था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हुई थी. बट द जो फंडामेंटल राइट्स, द एसेंशियल फ्रीडम टू सिटीजन,
was being denied in the Russia. So the countries क्या सोचने लगे कि as such model हर कंट्री में सोशलिज्म का सक्सेसफुल नहीं होगा, बट सोशलिज्म इज अ गुड थिंग. द कंट्री शुड एस्टेब्लिश सोशलिज्म या दे शुड फॉलो, they should work on the line of socialism, but it would be successful depending on various factors. कंट्री का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, एथनिक कंपोजिशन क्या है, कल्चर कस्टम्स क्या है. So for each and every country, although the base model is socialism, but there should be some modification according to the factors of each and every country. अलग अलग कंट्री का अलग अलग जो फैक्टर्स है उसके हिसाब से बेस मॉडल को मॉडिफाई करके कंट्री में अगर कंट्री इंट्रोड्यूस करते हैं सोशलिज्म को, then only the socialism would be successful. That is why it was recognized that social ideas still enjoyed respect among the Russians, but in each country the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. अलग अलग वे में, क्योंकि सभी कंट्री का बहुत सारा फैक्टर्स है. कंट्रीज की एथनिसिटी क्या है, जियोग्राफी क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, देन कल्चर कस्टम्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं. एज सच जो रशियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म ये किसी भी कंट्री में फिट या सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. कंट्री को सोशलिज्म इंट्रोड्यूस करना है तो दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ दैट इंडिविजुअल कंट्री. I hope this is clear to you. From this chapter we have map pointing also. इस चैप्टर में से कुछ मैप पॉइंटिंग्स हैं जो मैंने I will tell you. तो इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एज द फर्स्ट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो यूरोपियन ब्लॉक्स थे, सेंट्रल पावर एंड अलाइड पावर. सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, टर्की. इट वॉज रिटन, जो फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको दिखाए थे उसमें लिखा हुआ है. दो टू यूरोपियन अलायंस में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. एक सेंट्रल पावर की ब्लॉक, सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, टर्की था, और अलाइड पावर में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएस. यूएस, दिस इज द वर्ल्ड मैप. यूएस छोड़ के बाकी जितने भी कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरुआत में शुरू हुआ था, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज है. ये यूरोप है, तो यूरोप में बहुत छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं, एंड दिस इज नॉट क्लियर टू यू. दैट इज व्हाई आई विल शो यू अ सेपरेट मैप ऑफ यूरोप so that we can identify the European countries. So here it is the US, United States of America. USA ये था, US था अलाइड पावर में. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर में रशिया, ये रशिया है, रशिया था. US है, ये यहाँ पे है फ्रांस, ये इंग्लैंड. ओके, सो यू हैव टू मार्क अलाइड पावर में USA, then Russia, then France and England. नेक्स्ट यूरोप के मैप में हम देखते हैं और मोर क्लियर होगा. ये देखो, दिस इज फ्रांस, यू कैन सी. ये रशिया, यूएस आपको पहले ही मैंने दिखाया है एशिया, सॉरी इन वर्ल्ड मैप में, एंड दिस इज यूके, यूनाइटेड किंगडम. ये चारों कंट्री अलाइड पावर में था. और एक्सिस पावर में, सॉरी सेंट्रल पावर में कौन कौन से कंट्री थे? ये जर्मनी, देन ऑस्ट्रिया, जर्मनी के ठीक नीचे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के राइट हैंड साइड में हंगरी है. हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी. अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो पोर्तुगल बहुत छोटा है, जो थर्ड बिग कंट्री है यूरोप में. लेफ्ट से देखोगे स्पेन, फ्रांस, थर्ड है जर्मनी. जर्मनी के ठीक नीचे ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के राइट हैंड साइड में ईस्ट में हंगरी है. और एक कंट्री है दैट इज टर्की. टर्की है सेंट्रल पावर में, हियर यू कैन सी टर्की. ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के नीचे टर्की. और ये एशियन कंट्रीज है, सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्जिया,
Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, these are the Asian countries. Turkey is also in Asia. तो ये ब्लैक सी के नीचे टर्की है. So जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की, ये चारों कंट्री सेंट्रल पावर में थे. ओके, आई थिंक द चैप्टर इज क्लियर टू यू. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.